کیا امریکی باپ کا بیٹا امریکی نہیں ہوتا؟ امریکی فوجی کے بیٹے کو امریکہ سے کیوں نکال دیا گیا؟ اسے غیر قانونی تارکین وطن میں کیوں شمار کیا گیا؟ امریکہ اب تک کتنے غیر قانونی تارکین وطن کو ملک سے باہر نکال چکا ہے؟ امریکہ کا امیگریشن اینڈ کسٹم انفورسمنٹ ادارہ اس سلسلے میں کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی بیوی میلانیا ٹرمپ بذات خود غیر ملکی ہے؟ کیا اسے بھی امریکہ سے بے دخل کر دیا جائے گا؟ یہ سب کچھ دیکھیے آج کی اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم جی، میرا نام ہے میمونہ لطیف چیمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں VLC پاکستان۔ وہ جرمنی کے ایک فوجی اڈے پر ایک امریکی شہری فوجی کے ہاں پیدا ہوا۔ اب اسے جمیکا جلا وطن کر دیا گیا ہے، ایک ایسا ملک جہاں وہ کبھی نہیں گیا تھا۔ امریکی فوجی اڈے پر پیدا ہوئے، فوج میں خدمات انجام دینے والے امریکی شہری باپ کے بیٹے جرمین تھامس نے شاید کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ امریکی نہیں ہے۔ ایک ماہ قبل اس نے اپنے آپ کو جکڑا ہوا پایا۔ اس کی کلائیوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی گئیں اور ٹخنوں میں بیڑیاں لگا دی گئیں، اور پھر اسے اس کے والد کے جائے پیدائش جمیکا بھجوا دیا گیا، جمیکا جہاں تھامس کبھی گیا ہی نہیں تھا۔ تھامس نے بتایا ہے کہ اس کے ساتھ جو پیش آیا اسے لفظوں میں بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ تھامس نے کہا کہ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تھامس کے مطابق وہ قانونی طور پر بے وطن قرار دیا گیا۔ اسے بتایا گیا ہے کہ وہ امریکہ کا شہری نہیں ہے، حالانکہ اس کے والد امریکی شہری تھے۔ جرمین جرمنی کے ایک امریکی فوجی ہسپتال میں پیدا ہوا تھا۔ جمیکا اس کے والد کا آبائی وطن ہے یا پھر کینیا، جہاں اس کی ماں پیدا ہوئی تھی؟ 39 سالہ تھامس اس وقت ایک بے گھر کے طور پر کنگسٹن جمیکا کی ایک پناہ گاہ میں موجود ہے، جمیکا جہاں وہ اب اپنے آپ کو اپنے دوستوں اور خاندان سے سینکڑوں میل دور پھنسا ہوا پاتا ہے، جہاں اسے امریکہ میں گرفتاری کے بعد امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ کی تحویل میں لے کر منتقل کیا گیا۔ تھامس کے خاندان کے ارکان کا کہنا ہے کہ وہ تھامس سے ملنے سے ڈرتے ہیں۔ وہ سب اس بات سے خوفزدہ ہیں کہ اگر وہ تھامس سے ملنے جمیکا گئے تو وہ پھر کبھی امریکہ واپس نہیں جا سکیں گے۔ دراصل یہ سب لوگ ٹرمپ انتظامیہ کی ملک بدری کی وسیع مہم میں پھنس کر رہ گئے ہیں۔ موجودہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشن ایجنڈا میں یہ نقطہ شامل تھا کہ وہ امریکہ کو دوبارہ عظیم بنائیں گے اور تمام غیر ملکی غیر قانونی تارکین وطن کو امریکہ سے باہر نکال دیں گے۔ اپنے عہدے کا حلف اٹھاتے ہی ٹرمپ نے بہت بڑا کریک ڈاؤن شروع کیا، جس کے تحت اب تک 93,818 تارکین وطن امریکہ سے باہر نکالے جا چکے ہیں، جن میں سے 56,893 افراد کے خلاف جرائم کا کوئی ریکارڈ نہیں پایا گیا۔ امریکہ کا امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ ادارہ صرف جون کے وسط سے اب تک 56,397 افراد کو غیر قانونی تارکین وطن میں شمار کر کے گرفتار کر چکا ہے، جن میں سے 71.7% یعنی 40,433 افراد کے خلاف جرائم کا کوئی ریکارڈ دستیاب نہیں ہے۔ امریکہ سے جمیکا منتقل کیے جانے والے تھامس کا کہنا ہے کہ اب اس کا واحد آپشن یہ ہے کہ وہ اپنے مرحوم والد کے ذریعے جمیکا کی شہریت کے لیے درخواست دے، لیکن فی الحال اس کا ایسا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس کی تمام زندگی امریکہ میں گزری ہے، اس کے سب بچے امریکہ میں رہتے ہیں، اس کا سارا خاندان امریکہ میں رہتا ہے، تو وہ اکیلا جمیکا میں کیسے رہے گا؟ تھامس کہتا ہے کہ جمیکا ایک بری جگہ نہیں ہے، لیکن یہ اس کی جگہ نہیں ہے، وہ یہاں سے تعلق ہی نہیں رکھتا۔ در حقیقت تھامس سن 1986 میں جرمنی کے شہر فرینکفرٹ کے ایک امریکی فوجی ہسپتال میں کینیا میں پیدا ہونے والی ماں اور ایک امریکی شہری والد کے ہاں پیدا ہوا۔ تھامس کے باپ نے فوج میں 1 دہائی سے زیادہ عرصہ گزارا، جہاں اس نے فوج کے ہیلی کاپٹروں کی مرمت کی۔ دستاویزات کے مطابق تھامس کا والد 1984 میں امریکی شہری بن گیا تھا۔
थॉमस के खानदान के एक करीबी फर्द ने, जिसने इमिग्रेशन हुक्काम के जानिब से जवाबी कार्रवाई के खौफ से अपनी शनाख्त को खुफिया रखते हुए अमरीकी मीडिया को बताया है कि जहां तक उनकी खानदानी मालूमात है तो उनके मुताबिक थॉमस अमरीकी फौजी अड्डे पर एक अमरीकी वालिद के यहाँ पैदा हुआ था और इसके बारे में कभी कोई सवाल नहीं था कि आया वो अमरीकी था। थॉमस का खानदान सन 1989 में जर्मनी से अमरीका वापस आया। एक वीजा फॉर्म में अदालती फाइलिंग के मुताबिक 3 साला थॉमस की कौमियत जमैका के तौर पर दर्ज थी और वो एक कानूनी मुस्तकिल रिहायशी के तौर पर मुल्क में दाखिल हुआ। उसका वालिद सन 2010 में इंतकाल कर गया था। थॉमस फ्लोरिडा और वर्जीनिया में पला बढ़ा, लेकिन उसने अपनी बालिग जिंदगी का बेशतर हिस्सा टेक्सास में गुजारा, जहां उसने मुख्तलिफ किस्म की मुलाजमतें की, जिनमें तामीरात, सफाई सुथराई और कार वॉश का काम शामिल है। वो अक्सर बेघर रहता था और उसे मंशियात रखने, डकैती और चोरी समेत कम से कम 2006 तक मुख्तलिफ जुराइम में सजा सुनाई गई थी, जिसकी वजह से उसने कई साल कैद भी काटी। उसे सन 2011 में घरेलू तशद्दुद के जुर्म में 30 दिन की सजा सुनाई गई। टेक्सास डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेफ्टी के रिकॉर्ड के मुताबिक थॉमस ने हाल ही में 2020 से 2023 तक का अरसा नशे की हालत में गाड़ी चलाने और एक सरकारी मुलाजिम को हरासा करने की वजह से कैद में गुजारा, जो कि 3री डिग्री का जुर्म है। होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रिसिया मैक्लॉगलिन ने मीडिया के साथ शेयर किए गए एक बयान में थॉमस को जमैका से आए एक मुतशद्दिद, मुजरिमाना और गैर कानूनी अजनबी के तौर पर बयान किया, जिसने तकरीबन 2 दहाइयां अमेरिका में अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अहम खतरा बनकर गुजारी। बयान में कहा गया कि मिस्टर थॉमस जैसे खतरनाक मुजरिम गैर मुल्कियों की अमरीकी कम्युनिटीज़ में कोई जगह नहीं है। दूसरी जानिब थॉमस ने इतराफ़ किया है कि उसने तशद्दुद समेत मुख्तलिफ जुराइम का इर्तिकाब ज़रूर किया है और वो इस बात को छुपाता भी नहीं है, लेकिन उसने कहा कि उसे ज़िंदगी के ऐसे हालात में डाला गया जहां आप जानते हैं कि आप किसी न किसी तरह जिंदा रहने पर मजबूर होते हैं। मेडिकल रिकॉर्ड के मुताबिक थॉमस ज़हनी मरीज है और वो अमेरिका में नफ्सियाती अमराज की अद्वियात ले रहा था, और अब जबकि वो किंगस्टन जमैका में फेंका गया है तो यहाँ उसकी दवाएं खत्म होने वाली हैं। थॉमस के कुंबे के एक रुकन ने कहा है कि थॉमस ने बहुत सारे गलत इंतखाब किए हैं, लेकिन वो तशद्दुद पसंद नहीं है। थॉमस के रिश्तेदारों के ख्याल में उसे किसी ऐसे मुल्क में जिलावतन करने की बजाय जहां उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, अमेरिका में ही उसके खिलाफ मुकदमात चलाने चाहिए थे। लेकिन थॉमस कहता है कि बेदखली ने उसकी जिंदगी में सब कुछ बदल दिया है। थॉमस की कहानी, जिसके नतीजे में वो बेघर होकर जमैका में फंसे हुए हैं, फरवरी में शुरू हुई थी। इसे ऑस्टिन के शुमाल में टेक्सास के एक इलाके में अपने दोस्तों के साथ शेयर किए गए अपार्टमेंट से बेदखल कर दिया गया था। थॉमस ने कहा कि बेदखली का नोटिस लाने वाले कांस्टेबल ने तमाम अशिया घर से निकालकर सामने के सहन में छोड़ दी। थॉमस अगले दिन अपनी कमसन बेटी और इसके कुत्ते के हमरा अपने और अपने रूममेट के सामान की जांच करने के लिए वापस आया। उसके बाद पुलिस पहुंची और कहा कि उन्हें एक कुत्ते की जंजीरों में जकड़े हुए होने के बारे में कॉल मौसूल हुई थी। उसने निशानदही की कि कुत्ता पट्टे पर था, जंजीरों में बंधा हुआ नहीं था, और जब पुलिस ने उसकी शनाख्त पूछी तो उसने ये कहते हुए अपनी शनाख्त बताने से इनकार कर दिया कि उसने कोई जुर्म नहीं किया है। इसके बाद अफसरान उसे हथकड़ियां लगाकर जेल ले गए और कुत्ते को मुतलका सरकारी इदारे में जमा करा दिया। टेक्सास डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेफ्टी के रिकॉर्ड से पता चलता है कि थॉमस को 21 फरवरी के रोज मुजरिमाना बेराह रवी के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। उसने कोई मुकाबला ना करने की दरख्वास्त की और उसे $100 जुर्माने और अदालती अखराजात के साथ 30 दिन कैद की सजा सुनाई गई। थॉमस के मुताबिक उसने हुकाम के आयद करदा इल्जामात को चैलेंज ना करने की दरख्वास्त की, क्योंकि उसकी अदालत के मुकर्रर करदा वकील ने उसे बताया कि इस इल्जाम से लड़ने की कोशिश करने से वो महीनों तक जेल में बंद रह सकता है, और जाहिर है कि थॉमस जेल में नहीं जाना चाहता था। इस तरह थॉमस को उसकी 30 दिन की सजा के इख्तिताम पर इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट के अमले ने उठाया और हवालात में मुंतकिल कर दिया। कुछ हफ्तों के बाद उसे कुछ ऐसे मर्दों के साथ एक सेल में रखा गया जिन्होंने उसे कहा कि उन्हें निकारागुआ भेज दिया जाएगा। थॉमस के मुताबिक उसने दरवाजे पर दस्तक दी और एक अफसर से कहा कि वो मुझे बताएं कि क्या हो रहा है। एक सुपरवाइजर ने उसे यकीन दिलाया कि उसे मुल्क बदर नहीं किया जाएगा, बस उसे किसी और मकाम पर मुंतकिल करके कैद रखा जाएगा।
लेकिन ट्रांसपोर्ट वैन में उसे बताया गया कि कुछ कैदियों को निकारागुआ और दीगर को जमैका भेजा जा रहा है। उसके एहतजाज के बावजूद अफसरान ने इसरार किया कि वो जमैका का शहरी है, जिसे जमैका जलावतन किया जा रहा है, और उसे जबरदस्ती जहाज पर चढ़ाया गया। उसने कहा कि उसके साथ एक भगोड़े जैसा सलूक किया गया। हवाई जहाज में 10 यूएस मार्शल्स ने उसे घेर लिया। अमरीकी बाप की औलाद थॉमस ने कहा कि बिल आखिर वो एक ऐसे मुल्क के लिए हवाई जहाज में सवार हो गया जहां वो 28 मई से पहले कभी नहीं गया था। उसकी पीठ पर सिर्फ कपड़ों का एक बैग था और तमाम उम्मीदें खत्म हो गई थी। अब थॉमस कहता है कि उसने कभी ये नहीं सोचा था कि वो शायद अमरीकी शहरी नहीं है। चूंकि उसके वालिद अमरीकी शहरी थे, इसलिए उसने कभी अपनी इमिग्रेशन की हैसियत के बारे में कोई सवाल नहीं किया था। लेकिन ये सब सन 2008 में बदल गया, जब उसे मंशियात रखने के जुर्म में 2 साल की कैद की सजा से रिहा ने उठाया। उसने आईसीई होने के बाद याद किया कि उसके वालिद ने इमिग्रेशन हुक्काम को अपनी सूरत हाल बताई और उसे रिहा कर दिया गया। फिर सन 2013 में इसे होमलैंड सिक्योरिटी के महकमे से पेश होने का नोटिस मौसूल हुआ, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया था कि न सिर्फ वो जमैका का शहरी है, बल्कि अमेरिका में इसे मुजरिमाना अफ़आल पर सज़ाएं हो चुकी हैं और इस तरह इसे मुल्क बदरी का सामना भी करना पड़ेगा। इस कार्रवाई के नतीजे में एक तवील कानूनी जंग शुरू हुई, जिसका मरकज इस बात पर था कि आया पैदाइशी हक़ शहरियत के मकासद के लिए अमरीकी फ़ौजी अड्डे को रियासत-ए मुत्तहिदा में शुमार किया जा सकता है या नहीं। तो ये एक कानूनी उसूल है जो सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है, जबकि उसके वकला ने दलील दी है कि अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर पैदा होने वाले अमरीकी शहरी के बेटे के तौर पर थॉमस 14वीं तरमीम के तहत एक बाकायदा शहरी है। सन 2015 की अपील कोर्ट के फैसले में तय पाया कि वो अमरीका का शहरी नहीं था और इसे डिपोर्ट किया जा सकता था। अपील कोर्ट ने कहा कि थॉमस के अमरीकी शहरी वालिद ने थॉमस की पैदाइश के वक्त नाफिज कानून की ज़रूरियात को पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से वो अपने वालिद के जरिए शहरियत के लिए नाअहल हो गया। दरअसल थॉमस की पैदाइश के वक्त उसका वालिद अमेरिका में था और अगर थॉमस सिर्फ 1 साल बाद पैदा हुआ होता तो वो अमरीकी शहरी होता। सुप्रीम कोर्ट में थॉमस के वकला ने एरिज़ोना के सीनियर जॉन मैकिन का हवाला दिया, जो पनामा कैनाल जोन में अमरीकी बहरी अड्डे पर पैदा हुए थे। जब मैककेन ने 2018 में सदर के लिए इंतखाब लड़ा तो उनकी जाए पैदाइश ने जांच पड़ताल के अमल को अपनी तरफ मुतवज्जा किया, क्योंकि आइन के मुताबिक अमरीकी सदर के लिए अमरीकी सरजमीन पर पैदा होने वाला शहरी होना ज़रूरी है। लेकिन एक दो तरफा कानूनी जायजे ने यह नतीजा अखज़ किया कि वो वाकई एक कुदरती तौर पर पैदा होने वाला शहरी है और सदारत के अहल है। थॉमस के मामले में हुकूमत ने दलील दी कि मैकिन की पैदाइश के वक्त पनामा कैनाल जोन अमरीकी खुद मुख्तार इलाका था, इस फौजी अड्डे के बरक्स जहां थॉमस जर्मनी में पैदा हुआ था। थॉमस के एक रिश्तेदार ने कहा है कि वो इसके खिलाफ अदालत के फैसले से हैरान है, खास तौर पर इस बात पर कि उसके वालिद ने 18 साल फौज में खिदमत अंजाम दी और वो अमरीकी शहरी भी बना, तो थॉमस कैसे अमरीकी शहरियत का हकदार नहीं है। थॉमस के रिश्तेदार ने सवाल उठाया कि मेरा सवाल ये है कि अब किसी बच्चे को किसी ऐसी चीज का जिम्मेदार क्यों ठहराएंगे जिस पर उसका कोई कंट्रोल या इल्म ही नहीं था। अदालती फैसले के बाद वो अमरीकी शहरी तो नहीं रहा था, लेकिन थॉमस अमरीका में ही रहता रहा, क्योंकि यही वो वाहिद मुल्क था जिसे वो अब तक जानता था। थॉमस सैन एंटोनियो में इमिग्रेशन हुकाम को कई महीनों तक रिपोर्ट करता रहा। फिर एक अफसर ने उसे बताया कि इसे अब मजीद रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका से बेदखल किया जाने वाला अमरीकी बाप का बेटा थॉमस अब ये कहता है कि मैं चाहता हूँ कि वो तमाम लोग जो सरकारी खिदमात की किसी भी शाख में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, वो जान लें कि ये उनके बच्चों के साथ हो सकता है जब वो इस मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं। जमैका के आइन के तहत मुल्क से बाहर पैदा होने वाले जमैकन शहरियों को अपने बच्चों की शहरियत के लिए बाज़ाबिता तौर पर दरख्वास्त देना होती है। इस तरह थॉमस को जमैका की शहरियत नहीं मिल सकती। फिर वो कीनिया का शहरी भी नहीं है, जहां उसकी मां पैदा हुई थी, और कीनिया में सिर्फ बाप ही बैरून मुल्क पैदा होने वाले बच्चों को शहरियत दे सकते हैं। थॉमस के लिए अब ये सवाल पैदा हो चुका है कि आखिर उसकी शहरियत है क्या, वो कहाँ का रहने वाला है, अमेरिका का, जमैका का या फिर कीनिया का। अब अमेरिका उसे रख नहीं रहा, जमैका कहता है रख नहीं सकते, कीनिया कहता है थॉमस उनका भी नहीं। तो अब बेचारा थॉमस किधर जाए, आखिर उसका कौन सा वतन है? क्या थॉमस बेवतन है?
इस सवाल को लेकर अमरीकी कानून दानों में काफी लेदे हो रही है। कानून दानों के मुताबिक एक बेवतन शख्स वो शख्स है जिसे कोई भी रियासत अपने कानून के तहत कौमी नहीं समझती है, जबकि एक तखमीने के मुताबिक 2022 में खुद अमेरिका में 2 लाख से ज्यादा बेवतन अफराद मौजूद थे। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अमेरिका सन 1920 से सन 2018 तक यानी 98 बरसों के दौरान कम से कम 5 करोड़ 70 लाख अफराद को मुल्क से बेदखल कर चुका है। और दिलचस्प अमर यह है कि सदर ट्रंप की ज़ौजा मेलानिया ट्रंप यूरोपीय मुल्क स्लोवेनिया की रहने वाली है। अब क्या अमेरिका की खातून अव्वल भी मुल्क से बेदखल की जाएंगी? नाज़रीन, आपका क्या ख्याल है? क्या अमरीकी बाप का बेटा अमरीकी नहीं होता? क्या थॉमस अमरीकी बाशिंदा नहीं? क्या अमरीका इंसानी हुकूक का आलमी चैंपियन नहीं? क्या अमरीका अपने फौजियों की औलादों के साथ ऐसा ही सलूक करता है? अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा और इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।